আমাদের সঙ্গে এসে যোগ দিয়েছেন আরো এক অতিথি শেয়ার বিশেষজ্ঞ অজিত দে। অজিত বাবু, স্বাগত জানাই আপনাকে। অজিত বাবু, আপনার কাছে প্রথমে জানার চেষ্টা করি যে ওভারঅল এই বাজেটটা আপনার কি রকম লাগলো? এক কথায় বলতে গেলে বলবো সুপার। সুপারব। কারণ আমরা প্রথমেই দেখব যে আমাদের দরকার ইনফ্রাস্ট্রাকচার স্পেন্ডিং, দ্যাট ইনক্লুডস এগ্রিকালচার, দ্যাট ইনক্লুডস রুরাল, দ্যাট ইনক্লুডস হাউসিং। তো তিনটেতেই ঢেলে অ্যালোকেশন। আর এটা এক্সপেক্টেড ছিল এই জন্য যে টাকা কিন্তু অনেক এসছে, যেমন এরপরে সিপিএসই করে টাকা আসবে, ইটিডি করে টাকা আসবে, এইগুলো তো আউটলেট দরকার। তো ওটা অর্থমন্ত্রী খুব দারুণভাবে করেছে। তো আমার মনে হয় ইন টোটালিটি আমরা এক্সপেক্ট করেছিলাম যে হয়তো ছোটোদের কিছু ট্যাক্সের জায়গা সেটাও দিয়েছে, কারণ এর চেয়ে বেশি কিছু আমার মনে হয় না এই মুহূর্তে এক্সপেক্ট করা উচিত। তো গ্রাম ভারত সেটা এবার ফোকাস আমরা দেখতে পাচ্ছি। মধ্যবিত্ত তাদের কর ছাড়ের ক্ষেত্রেও একটা জায়গা স্বস্তির একটা জায়গা দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু যেটা কিছুক্ষণ আগে আমরা বণিক মহলের বক্তব্যে পাচ্ছিলাম যে গ্রোথ রেটের জন্য মেজর স্টিমুলাস, সেটা কি কোথাও অ্যাবসেন্ট? মেজর স্টিমুলাস বলতে খালি ট্যাক্সটা 1% কমিয়ে দিলেই যদি সবাই খুশি হয়ে যেত তাহলে আলাদা কথা ছিল, তার চেয়ে বেশি কেউ এক্সপেক্ট করতো না কর্পোরেট ট্যাক্সে। সেই জায়গায় এমএসএমইকে ওরা 5% দিয়ে দিয়েছে। তো এমএসএমইটা তো নাম্বার গেম দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছে, ওর কাছে যত নাম্বার গেম আছে অত নাম্বার গেম তো আমরা বলতে পারবো না। সুতরাং ও যে নাম্বার গেম দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছে তাতে নাম্বার অফ পিপল পার্সেন্টেজ ওয়াইজ যদি দেখে তাহলে এমএসএমই অনেক বেশি অ্যাডভান্টেজ পেয়েছে। বড় যেটা ট্যাক্স ছিল সেটা হয়তো 30 থেকে ওটাকে 25 করার কথা তো আগেই বলেছিল, যেটা করব ধীরে ধীরে ওভার এ পিরিয়ড অফ টাইম। তো সেটা এখনো টাইম আছে, সুতরাং করতে পারে ওখানে। আমি শৌভিক বাবুর কাছে এখানেই আসবো যে কর্পোরেট ট্যাক্সের ক্ষেত্রে বা ম্যাটের ক্ষেত্রে যেটা অনেকেই এক্সপেক্ট করছিলেন সেই সম্পর্কে কিন্তু কোনো রকম ডেভেলপমেন্ট আমরা দেখলাম না এবারের বাজেটে। হ্যাঁ, আমি মানে অ্যাটলিস্ট শেয়ার মার্কেটে লোকজনরা এক্সপেক্ট করছিলেন যে ট্যাক্স কমবে কিছু, আর সেটা হয়নি সেক্ষেত্রে। এখন ওই জায়গায় ট্যাক্স কমলে সেটা ভালো হতো কি খারাপ হতো সেটা বলা, কোনো হিসেব না করে বলাটা কঠিন। তবে আমার মনে হয় ব্যক্তিগতভাবে ঠিকই আছে, মানে ওখানে ট্যাক্স কিছু কমানো হয়নি, ইটস ফাইন। কিন্তু যেটা বেশি আমার অন্য কথা, এইবারের বাজেট সম্পর্কে অন্য কথা অনেক কিছু বেশি বলার আছে, সেটা নট স্পেসিফিক্যালি কর্পোরেট ট্যাক্স নিয়ে বাট ইন জেনারেল। সেটা হচ্ছে ফার্স্টলি প্রতি বছর এরকম বাজেট হয়, লাস্ট ইয়ারও বাজেট হয়েছে, তাতে অনেক প্রপোজাল আসে। বাজেট আমাদের আয়ের ব্যয়ের একটা প্ল্যান। সো দুটো জিনিস আমাদের কেয়ারফুল থাকতে হবে যে আমরা যে ব্যয়ের প্ল্যান করছি সেই টাকা আমাদের কাছে আছে কিনা। আমরা বলে দিতে পারি আমরা এত ট্যাক্স ছাড় দিয়ে দিলাম, টাকাটা আসবে কোথা থেকে? তার জন্য আমাদের একটা হিসেব দরকার। গত বছরে যদি বাজেট দেখা যায়, আমার কাছে গত বছর বাজেটের হাইলাইটসটা আছে। হেলথে প্রতি ফ্যামিলিকে 1 লাখ টাকার প্রিমিয়াম হেলথ কভার দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল, সিনিয়র সিটিজেনদের 30,000 টাকা। এডুকেশনে 10টি পাবলিক 10টি প্রাইভেট এডুকেশনাল ইনস্টিটিউট ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে করার কথা হয়েছিল। 17,000 কোটি টাকা 1,500 মাল্টি স্কিল ডেভেলপমেন্ট সেন্টার বানানোর জন্য কথা হয়েছিল, এবং অনেক কিছু এরকম স্কিম ছিল। আমি ইন্টারনেটে সার্চ করে এগুলো কতটা ইমপ্লিমেন্ট করা হয়েছে তার কোনো প্রিসাইজ মেজার পাইনি। সেরকমভাবেই এবারে যেগুলো ট্যাক্স ছাড়, আই নো এটা ইমপ্লিমেন্টেড করতেই হবে, এটা ইমপ্লিমেন্টেড হবেই, কিন্তু তাছাড়াও আরও যে প্রকল্প সেগুলো কতটা হচ্ছে আমাদের সেগুলো দেখা দরকার। কারণ একদিনে বাজেট হলো, অনেক প্রকল্প বলা হয়ে গেল, আমরা খুশি হলাম, তারপর আমরা ফলো করি না যে সেটা কতটা দেখা হচ্ছে, সেটা ইম্পর্টেন্ট। অ্যান্ড ফার্স্টলি যদি সরকার চান এইভাবে আমাদের সার্ভ করার, তাহলে সরকারকেও সেই টাকাটা আসতে হবে। ডিমনিটাইজেশন থেকে যেটা এক্সপেকটেশন ছিল যে অনেক টাকা আসবে সরকারের কাছে রেভিনিউ, যেটা ব্ল্যাক মানি, কিন্তু রিপোর্ট বলছে যে 96% মানি অলরেডি চলে এসেছে। আমরা জানি না এটা ব্ল্যাক অর হোয়াইট হিসেবে এসেছে, ব্যাংকিং চ্যানেল এসেছে, সেটা ব্ল্যাক কি হোয়াইট আমরা জানি না। তো সেখান থেকে সরকারের আর্নিং কতটা এই মুহূর্তে আমাদের কাছে ক্লিয়ার নয়। যদি ওখান থেকে আর্নিং না আসে, অফকোর্স ডিমনিটাইজেশনে মানুষজন কে সাফার করতে হয়েছিল, তো তাদের খুশি করার জন্য কিছু দেওয়া দরকার, সেজন্য ট্যাক্স কমানো হয়েছে। কিন্তু দেওয়াটা আসবে কোথা থেকে? যদি ওখান থেকে কোনো আর্নিং না হয়ে থাকে, তাহলে এই যে ট্যাক্স কমানো, এই যে ছাড়গুলো, সেগুলো ডাইরেক্টলি আসছে কোথা থেকে? অফকোর্স এক জায়গায় জেনারেল যে জায়গাগুলো সেগুলো থেকে তো আর্নিং হচ্ছেই, কিন্তু ডিমনিটাইজেশনের থেকে এফেক্ট হিসেবে এই মুহূর্তে কিছু এক্সপেক্ট করার আমি পাচ্ছি না। আমি আসবো, প্লিজ আমরা শুনে নেব প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, তিনি রিঅ্যাকশন দিচ্ছেন এই মুহূর্তে। हर किसी की उम्मीदों को अवसर देगा, अर्थतंत्र को एक नई ताकत देगा, नई मजबूती देगा और विकास को बहुत तेजी देगा। इस बजट में हाईवे भी बने, हाईवे भी बढ़े, दाल के दाम से लेकर डेटा की स्पीड तक
रेलवे के मॉडर्नाइजेशन से लेकर के सरल इकोनॉमिक निर्माण करने की दिशा में, शिक्षा से लेकर के स्वास्थ्य तक, उद्यमी से लेकर के उद्योग तक, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के टैक्स रिडक्शन तक, हर किसी के सपने को साकार करने का ठोस कदम इस बजट में साफ साफ नजर आता है। इस ऐतिहासिक बजट के लिए वित्त मंत्री के साथ साथ उनकी पूरी टीम भी अभिनंदन के अधिकारी है। ये बजट देश के विकास के लिए पिछले 2.5 वर्ष में जो कदम उठाए गए, जो फैसले लिए गए और भविष्य में और मजबूती के साथ आगे बढ़ने के इरादों के बीच ये एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। इस बजट को मैं देख रहा हूं। एक अन्य महत्वपूर्ण कदम है कि रेलवे बजट को जनरल बजट में मर्ज कर दिया गया है। इससे अब पूरे ट्रांसपोर्ट सेक्टर, उसको इंटीग्रेटेड प्लानिंग में मदद मिलेगी। देश में परिवहन से जुड़ी आवश्यकताओं की पूर्ति में रेलवे अब अपना योगदान और बेहतरीन तरीके से कर पाएगी। ये बजट कृषि क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र, सामाजिक कल्याण, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सभी क्षेत्रों में एक विशेष ध्यान आकर्षित करता है। निवेश बढ़ाने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने की दृष्टि से सरकार की जो प्रतिबद्धता है वो इस बजट में साफ साफ नजर आती है। इन योजनाओं के लिए आवंटन में भी बहुत बढ़ोतरी की गई है। सरकारी निवेश को मजबूती देने के लिए रोड और रेल सेक्टर के लिए भी आवंटन में काफी वृद्धि की गई है। सरकार का लक्ष्य 2022 तक हमारे देश के किसानों की आय डबल करने का इरादा है, 2 गुना करना है। नीतियां एवं योजनाएं उसी प्रकार से तय की गई है। बजट में सबसे ज्यादा जोर इस बार भी किसान, गांव, गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित, उन पर केंद्रित किया है। एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, फिशरीज, वाटरशेड डेवलपमेंट, स्वच्छ भारत मिशन, ये सारे क्षेत्र ऐसे हैं जो गांव की आर्थिक स्थिति में बहुत बड़ा बदलाव भी लाएंगे और ग्रामीण जीवन जीने वाले लोगों के क्वालिटी ऑफ लाइफ में भी बहुत बड़ा बदलाव लाएंगे। बजट में रोजगार बढ़ाने पर भी भरपूर जोश दिया गया है। नौकरी के लिए नए अवसर पैदा करने वाले सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल, उसको विशेष राशि दी गई है। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को संगठित क्षेत्र में लाने के लिए भी व्यापक प्रावधान किए गए हैं। स्किल डेवलपमेंट बजट में काफी बढ़ोतरी की गई है। ये हमारे देश के युवाओं को ध्यान में रख करके और जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है इसका भरपूर फायदा भारत को मिले, उस पर ध्यान केंद्रित किया है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, उसके लिए भी अब तक जितना हुआ है किसी भी वर्ष में ना हुआ हो, इतना रिकॉर्ड आवंटन किया गया है। बजट में महिला कल्याण पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। महिलाओं और बच्चों से जुड़ी योजनाओं के लिए बजट में वृद्धि की गई है। स्वास्थ्य और उच्च शिक्षा के लिए भी बजट में काफी बढ़ोतरी की गई है। आर्थिक विकास में तेजी लाने और रोजगार के नए अवसर बनाने में हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर
ये इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। ये बजट ग्रामीण के साथ साथ शहरी इलाकों में भी हाउसिंग सेक्टर को मजबूती प्रदान करने वाला है। रेलवे के बजट में एक बात पर विशेष बल दिया है और वो है रेलवे सेफ्टी फंड। इस फंड की मदद से रेलवे सुरक्षा पर पर्याप्त धनराशि खर्च करने में मदद मिलेगी। बजट में रेलवे और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के कैपिटल एक्सपेंडिचर में काफी बढ़ोतरी कर दी गई है। डिजिटल इकोनॉमी के लिए जो कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज दिया गया है उससे टैक्स चोरी की संभावनाएं कम होगी और अर्थव्यवस्था में काले धन के प्रवाह पर नियंत्रण संभव होगा। डिजिटल इकोनॉमी को एक मिशन के तौर पर शुरू किए जाने से आने वाले वर्ष में 2017-18 में 2500 करोड़ डिजिटल ट्रांजैक्शन के बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। हमारे वित्त मंत्री जी ने कर प्रणाली में जो सुधार और संशोधन किए हैं उससे मध्यम वर्ग को राहत मिलेगी, उद्योगों की स्थापना होगी, रोजगार के अवसर मिलेंगे, भेदभाव के अवसर खत्म होंगे और सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि निजी निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा। बजट में व्यक्तिगत इनकम टैक्स कम करने की घोषणा देश के मध्यम वर्ग को ज्यादा स्पर्श करती है, बड़ी महत्वपूर्ण है। 10% से एकदम 5% कर देना बड़ा साहसपूर्ण निर्णय है। करीब करीब हिंदुस्तान के अधिकतम करदाताओं को इससे बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। आपने देखा होगा बजट में काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी लड़ाई निरंतर चल रही है। पॉलिटिकल फंडिंग की चर्चा हमारे देश में बहुत होती रही है। राजनीतिक दल हमेशा चर्चा के घेरे में रहे हैं। चुनाव के अंदर डोनेशन एकत्र करने की नई योजना भी वित्त मंत्री जी ने देश की आशा आकांक्षा और काले धन के खिलाफ की लड़ाई के अनुरूप आज प्रस्तुत की है। देश के छोटे और मध्यम उद्योग नौकरी के नए अवसर पैदा करने के सबसे बड़े स्रोत हैं। इन उद्योगों की पुरानी मांग रही है कि ग्लोबल कंपटीशन में वैश्विक स्तर पर मुकाबला करने में उनको कठिनाइयां आ रही है। अगर इसके लिए टैक्स कम किया जाए तो हमारे लघु उद्योग, जो कि करीब करीब 90% से ज्यादा है देश में, और इसलिए सरकार ने छोटे छोटे उद्योगों को और उसमें परिभाषा में बदलाव करके उनके दायरे को भी बढ़ाया है और टैक्स को भी 30% से घटा करके 25% कर दिया है। यानी देश के उद्योग जगत के 90% से ज्यादा लोग इसका लाभ ले पाएंगे। ये फैसला, मुझे विश्वास है कि देश के छोटे उद्योगों को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनने में बहुत बड़ी मदद करेगा। ये बजट देश के विकास के लिए एक मजबूत कदम है। इस बजट से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, संपूर्ण आर्थिक विकास में मदद मिलेगी, किसानों की आमदनी बढ़ाने में ये पूरक होगा, नागरिकों को उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को ध्यान में रखते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, ये सारी चीजों में अधिक अच्छी सुविधाएं की संभावना बढ़ेगी
और बिना वित्तीय घाटा बढ़ाए देश के मध्यम वर्ग के पास उसकी खरीद शक्ति बढ़े, उसके जेब में ज्यादा पैसे आए, उस दिशा में प्रयास है। एक प्रकार से ये बजट हमारा देश जो बदल रहा है उसको और अधिक तेजी से बदलने का प्रयास, एक प्रकार से हमारे सपनों से जुड़ा हुआ, हमारे संकल्पों से जुड़ा हुआ ये बजट एक प्रकार से हमारा फ्यूचर है, हमारी नई पीढ़ी का फ्यूचर है, हमारे किसान का फ्यूचर है। और जब मैं फ्यूचर कहता हूं तब उसका मेरा मन में एक मीनिंग है। ऐप से फार्मर्स, किसानों के लिए, यू से अंडर प्रिविलेज, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, महिला, उनके लिए, टी से ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, आधुनिक भारत बनाने का सपना, यू से अर्बन रिजुविनेशन, शहरी विकास के लिए, और आर से रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास के लिए, और ई से नौजवानों के लिए एम्प्लॉयमेंट, उद्योग साहसिकों के लिए एंटरप्रेन्योरशिप, एनहांसमेंट, नए रोजगार को बढ़ावा देने के लिए, नौजवान उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए मैं इस बजट के लिए इस फ्यूचर को प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री जी को फिर से एक बार बधाई देता हूं और देशवासियों को उनके सपने साकार करने की दिशा में ये बजट एक बहुत बड़ी सहाय व्यवस्था है जो देश को आगे भी बढ़ाएगा, विकास की नई ऊंचाइयों को पार करेगा और देश में एक नया विश्वास का माहौल बनाने में ये बजट बहुत ही उपकारक होगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। फिर एक बार वित्त मंत्री को, वित्त मंत्रालय को, उनकी पूरी टीम को हृदय से बहुत बहुत बधाई।